وہ بہت بڑے مارکے کے ساتھ میں نے جیتا۔ آپ کو ایک دفعہ ٹکٹ نہیں ملی، ہمارا سیاسی قتل کیا گیا ہے، اس قتل کو ہم نہیں بھولیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید علی حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں تکویر میڈیا۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ چودھری رفیع راہ صاحب موجود ہیں۔ یہ پی ایم ایل این کے ایک سینئر پولیٹیشین، سینئر لیڈر بھی ہیں، اور تو اور سابقہ ٹکٹ ہولڈر بھی رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی کئی ساری تنظیموں کے اندر انٹریز وغیرہ بھی ہیں۔ چونکہ تجربہ کار انسان ہے تو آئیے ہم ان کے ساتھ کچھ پولیٹکس کے ریلیٹڈ بات چیت کریں گے، کچھ ہلکے کے مسائل کے اوپر بات چیت کریں گے، اور اس طرح کے کچھ روب دار ٹاپکس کے اوپر بات چیت کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم چوہدری صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ چوہدری صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ تو آپ ایک دفعہ خود ہی جو ہے نا ہمیں بتائیں اپنے ٹوٹل بیک گراؤنڈ کے بارے میں، اپنے تھوڑا کہ کیا کیا آپ کے پاس عہدہ ہے، کیا کیا عہدے جات ہیں، تھوڑا سا ہمیں بتائیے۔ ماشاء اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا بے حد مشکور ہوں، آپ کی ٹیم کا اور آپ کا، کہ آج آپ نے مجھے یہ وقت دیا کہ میں کچھ اپنے ملک کے بارے میں، کچھ حلقہ کے بارے میں کو آپ سے گفتگو کر سکوں۔ تو پہلے تو میں آج پاکستان کی جشن آزادی کے حوالے سے سارے دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دوسرا اس پہ جو ہم نے بھارت سے، انڈیا سے جو ہم نے جنگ جیتی ہے، اس سلسلے میں بھی پوری قوم کو میں آپ کی وساطت سے یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس وقت جو خوشیاں عطا کی ہیں وہ زندگی میں کم ہی نصیب ہوتی ہیں، بلکہ تاریخ کا حصہ بنتی جا رہی ہیں۔ تو اس لحاظ سے آج کا دن میرے لیے بہت اہم دن ہے کہ ایک تو جشن آزادی کے حوالے سے، دوسرا ہم نے جو بین المرصوص کے حوالے سے جو جنگ جیتی ہے، تو اسی حوالے سے میں اپنا ذاتی طور پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم ابتدائی طور پر شروع ہوئے تو میں مرے کالج میں جنرل سیکرٹری کے حوالے سے الیکشن لڑا، اور جنرل سیکرٹری کا میں نے الیکشن جیتا۔ یہ ہماری پولیٹیکل ابتدائی دور تھا، بلکہ وہ میں نے اپنا مرے کالج میں انجمن طلباء اسلام کے پلیٹ فارم سے میں نے وہ اپنا جنرل سیکرٹری کا الیکشن جیتا۔ اس کے بعد باقاعدہ طور پر ہم آہستہ آہستہ اس میدان عمل میں، سیاسی میدان عمل میں آ گئے۔ تو سٹارٹنگ میں میں نے ممبر ضلع کونسل کا الیکشن کنٹیسٹ کیا، وہ بھی جیتا جی۔ اس کے بعد میں نے ممبر ضلع کونسل کا الیکشن بھی جیتا۔ پھر میں نے یونین کونسل کے ناظم کی حیثیت سے بھی میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا، وہ بہت بڑے مارکے کے ساتھ میں نے جیتا۔ مارکا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کی جو حکومت تھی، جسے قافلے کی حکومت کہتے ہیں، اس وقت دو وزیر میرے مخالف اس وقت چل رہے تھے۔ ایک اس وقت جو ہمارے اسی وقت جو زاہد حامد صاحب ہمارے مسلم لیگ میں آ گئے ہیں، وہ اس وقت میری مخالفت پہ میرے خلاف بلکہ جلسے کر رہے تھے میرے مخالف کینڈیڈیٹ کے۔ تو دوسری طرف وہ جو افضل سائی ہیں اسپیکر صاحب، وہ بھی میرے حلقے میں میری مخالفت پہ ہی اس وقت میرے مخالف وہ جلسے کر کے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، حلقے کے لوگوں کی مہربانی سے، اس وقت مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ عزت عطا کی پبلک سے۔ تو اس کے بعد 2008 میں مجھے پاکستان مسلم لیگ کا ٹکٹ ملا۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے حلقہ 1 to 5 اس حلقے تھا، اس حلقے کا نام 1 to 5 تھا۔ 2008 میں نے جو الیکشن کنٹیسٹ کیا، وہ الیکشن تو میں لوز کر گیا تھا، لیکن اس الیکشن نے ایک سبق دیا قوم کو۔ یہ سبق دیا کہ اس وقت بے نظیر کی شہادت کی وجہ سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بن گئی، تو ظاہر ہے کہ اس کی شہادت سے وہ ووٹ سارا جو ہے نا اسی طرف گیا، تو دوسرے پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ اس وقت جیت گیا۔ اچھا چوہدری صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ چونکہ آپ الیکشن کے اندر کافی سارا ان ہیں، تو یہ کہ آپ کا شروع سے شوق تھا، آپ کا پیشن تھا کہ میں نے بھائی بڑے ہو کے ایک سیاسی بندہ ہی بننا ہے، کوئی اس کے اندر آپ کی سوچ تھی، یا عوام نے آپ کو فورس کیا کہ بھئی آپ نے ایک سیاسی بننا ہے، عوام کی انفورسمنٹ سے آپ بنے؟
हमारे इर्द गिर्द और हमारे घर का माहौल ऐसा ही था। मेरे भाई भी पहले ज़िला कौंसिल का इलेक्शन कंटेस्ट कर चुका था। उस वक्त जो सियालकोट में जो क़यादत थी वो उनका उस वक्त पूरे ज़िले में तोती बोलता था। तो उस वक्त मेरा भाई चौधरी मुश्ताक बड़े भाई हैं, उन्होंने मेंबर ज़िला कौंसिल का इलेक्शन लड़ा था। तो उस वक्त 2 दफ़ा उस वक्त के सियासतदान चेयरमैन बने हुए थे ज़िला के, तो उनके भाई के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा था। तो माहौल घर में ऐसा ही था। वालिद साहब भी मतलब ख्वाजा सफदर साहब हमारे इलाके में उस वक्त इलेक्शन लड़ते थे। तो वालिद साहब भी पुराने ज़माने में हमारे वालिद साहब ने भी उस वक्त इलेक्शन पाकिस्तान के बनते वक्त ही इलेक्शन लड़ा था, जब हमारा लालटेन उस वक्त निशान था। तो मेरे इलेक्शन में भी एक दफ़ा मुझे लालटेन का निशान दोबारा मिला था। मेरे ख़ानदान को बड़ी खुशी हुई थी। तो घर के माहौल के और इलाके के माहौल के सिलसिले में ही बस ऐसे ही तरबियत होती रही। बल्कि जब हम चले गए कॉलेज में, तो कॉलेज में जाने से ज़रा ज़्यादा मुझे तवज्जो मिली इस सिलसिले में, तो फिर आगे जो कदम बढ़ाते रहे। अच्छा चौधरी साहब, मैं आपसे अभी मिला भी हूँ, ठीक है, और मिल के मैंने भी कुछ चीज़ें नोट की अच्छी, और मैंने सोसाइटी में भी सोशली भी आपकी काफ़ी अच्छी बातें सुनी। मतलब मुझे ये फील हो रहा है कि आप सिर्फ नाम के चौधरी ने, रियली चौधरी हैं। कुरान मजीद में इरशाद है कि अमल भी इबादत है, और जो इंसान सियासत में होता है, जो अपने हल्के की खिदमत करता है, वो तो वैसे ही इबादत करता है। मुझे आप ये बताएं कि आपने अपने हल्के के लिए जो काम किया, या आपने आप जो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, उसको खाली रोज़गार समझ के ही सर अंजाम देते हैं कि मतलब इबादत समझ कर सर अंजाम देते हैं, उसके अंदर कोई अपना फ़ायदा सोचते हैं या अल्लाह ताला की रज़ा सोचते हैं? मेरे नज़दीक सियासत एक है, ये इबादत है। आदमी को शायद इबादत करने में इतने खिदमत के मौके ना मिलें जैसे कि सियासत में। अगर आप इसी प्लेटफार्म पर चलते जाएं तो आपको डेली ऐसे मौके मिलेंगे कि जो किसी भी किसी शख्स की अगर कोई मुश्किल होती है उसके लिए जाते हैं, जब किसी को काम पड़ता है उसकी हेल्प करते हैं। तो ये ही असल में इबादत है, दूसरों के काम आना। तो सियासत में मेरे ख्याल सियासत है ये इबादत है, अगर बंदा नीयत से करे और नेक नीयती से, बस अपने आप को ये समझे कि मैंने खिदमत करनी है और कौम की खिदमत करनी है और आवाम की खिदमत करनी है। तो इससे बड़ी कोई आवाम की खिदमत से बड़ी कोई इबादत नहीं है। बाकी सारी इबादतें तो अपने ज़ात के लिए है, ये जो किसी के काम आना है सबसे बड़ी इबादत ये है। सियासत भी एक इबादत है। सियासत ही मैंने बोला, हाँ, सियासत एक इबादत। आपने भी ये बात बोली, करप्शन एक लानत है, ठीक है। आजकल हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं कि हर दूसरा बंदा ही करप्ट है। इसके अंदर सियासतदान भी मुलविस है, इसके अंदर इदारे भी मुलविस हैं, इसके अंदर एक आम आदमी भी मुलविस है। जहाँ भी हम जाएं तो मेरा ख्याल है हल्चे पानी के बगैर काम नहीं होता। इस बारे में आपका क्या कहना है? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या कहना है आपको इस बारे में? हमारे मुआशरे को इस तरह का बना दिया गया है कि बतौर मुआशरा ही करप्ट हो गया है। करप्शन सिर्फ पैसे की नहीं, करप्शन जमातों में देख लें कि जो किसी सियासतदान की ज़ेन साजी करता है किसी के खिलाफ, वो भी एक करप्शन है। जो कि कोई सियासतदान अगर किसी का हक मारता है, मसलन कि किसी की टिकट बनती है, किसी का मतलब है कोई ओहदा बनता है, अगर वो उसको नहीं देता तो वो सबसे बड़ा वो लीडर ही पहले करप्शन का मबा बनता है। करप्शन एक तरह की नहीं, पैसे की करप्शन नहीं, ज़हनी तौर पर हर किस्म की करप्शन शुरू हो गई है। किसी दोस्त के साथ आप मुखलस नहीं, अपनी कौम के साथ लोग मुखलस नहीं, बल्कि हत्ता कि अपने दीन के साथ भी अपने लोग पूरी तरह मुखलस नहीं। तो साहब, आपको नहीं लगता कि इस चीज़ से हम आगे जाने के बजाय पीछे जा रहे हैं? बिल्कुल, हमारा मुआशरा ऐसी पस्ती में चला गया कि जब आप पाकिस्तान आज़ाद हुआ था उस वक्त लोगों को देख ले, हर आदमी एक दूसरे के काम आता था और हेल्प करता था, और उस वक्त करप्शन का कोई तस्वर नहीं था। बस यही छोटी मोटी किसी की सिफारिश होगी या दूसरी की। अब तो सिर्फ करप्शन ही ऐसी एक सिलसिला बन गया कि कोई काम अगर किसी का नहीं भी होता या कोई नहीं मान रहा तो लोग पैसे का लालच देंगे
लोग किसी को अपनी ताकत का लालच देंगे, किसी काम का लालच देंगे अपना काम करवाने के लिए, हर तरह का मतलब है किसी को लालच देंगे। तो मनासल कौम लीडरशिप को ही करप्ट कर दिया गया है। तो जब लीडरशिप करप्ट हो जाए तो मुल्क का हाल देख लें, मुल्क की तबाही हो गई है। बल्कि मुल्क आज जिस मकाम पे खड़ा है, ये आज जो हमने रब ने जो इज्जत दी है ना, आज जो हमें रब ने इज्जत दी है, अगर हम मनासल कौम आज तौबा कर लें कि हम आज के बाद ऐसी कोई हरकत ना करे, हुक्मरानों को ये तय कर लें कि ऐसी कोई किसी का हक ना मारे, किसी के मतलब किसी करप्शन के सिलसिले, जैसे आपके सामने इस वक्त मतलब मरीम नवाज शरीफ काम कर रही है, बगैर किसी सिफारिश के मेरिट पे काम कर रही है। अगर इसी तरह के हुक्मरान आते जाएं तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में ऐसा तसव्वुर लोगों के ज़हन में बन जाएगा कि करप्शन की सोच भी ना होगी। आपके सामने एक अदारा बनाया गया है CCD, देख ले 3 माह में उसका रिजल्ट सामने आ गया। इसी तरह एक और अदारा सामने खड़ा कर दिया गया पैरा, इंशाल्लाह उसका भी रिजल्ट सामने आएगा। और एक जो नार्को टैक्स में आ गया है, 3 अदारे खड़े हो गए ना, इन अदारों ने ही ये मूवमेंट चेंज करनी है, लोगों के ज़हन की ज़हन साजी हो जानी है, लोगों की ये करप्शन भी नहीं होगी और लोगों के ज़हन में ये भी होगा कि ऐसा काम हम करें ही ना। तो जब गलत काम ना करेंगे तो ना करप्शन होगी, तो ना कोई गलती की तरफ जाएगा, गलत काम की तरफ अगर जाएंगे नहीं तो खौफ किस बात का होगा। अच्छा चौधरी साहब, आपने भी कहा सियासत एक इबादत है, हर इंसान का अपना अपना ज़हन होता है और उस इंसान पर अल्लाह ताला की नेमत होती है, अल्लाह ताला का खास करम होता है कि जो अच्छी सोच रखता है, जो अच्छा सोचता है। अब आपने कहा सियासत एक इबादत है, तो आपको नहीं लगता कि बाकियों को भी ये समझना चाहिए कि अब हम यहाँ तस्दीक तो नहीं करेंगे, लेकिन आपको नहीं लगता कि कई सारे लोग हैं, काफ़ी सारे यहाँ ऐसे बंदे हैं कि जिनको इस चीज़ को समझना चाहिए कि वाकई सियासत एक इबादत है? मेरे ख्याल में हो सकता है वो समझते हों, ये तो उनके नज़दीक वो शायद ये इबादत समझ के ही काम कर रहे हो, लेकिन ये जो मजमूई तौर पे जो सामने मुआशरा सामने आया ना, ये मुआशरे की एक पुकार है कि मुआशरा बता रहा है कि मुआशरा में सही तरफ नहीं जा रहा, लेकिन अब रोक लग रही है। जो हमारी नई क़यादत आई है वो रोक लगा रही है। अगर ये रोक लग गई तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में मुआशरे में बेहतरी आएगी। तो साहब, सियालकोट का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो वो अच्छा है काफ़ी, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ों से सियालकोट महरूम है, जैसे कि गलियों की सफाई वगैरह, रोड वगैरह टूटे हुए हैं, या मतलब कुछ काफ़ी सारी खामियां हैं। तो आपका क्या माइंड सेट है, क्या बेहतरी करते हैं आप, या क्या बेहतरी आपने की? आपने पहले एक सवाल किया था, मैं वो पूरा नहीं कर सका, क्या आपने इलाका में डेवलपमेंट क्या करवाई है, क्या नहीं हुआ। मैंने अल्लाह की मेहरबानी से जब ज़िला काउंसिल का मेंबर बना था उस वक्त भी इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से अपने हलके के जो काम छोटे थे, छोटे एरिया में रोड, छोटे रोड, लिंक रोड और नाली और गली, उस वक्त भी मैंने बड़ी कोशिश की है और काफ़ी सारे काम किए हैं। उसके बाद मैं जब नाज़म बना, बतौर नाज़मी, ये हमारा जो रोड इस वक्त करतारपुर रोड के नाम से जो बन रहा है, ये मेरे ख़ानदान को ही शर्फ हासिल है। और आज जो रोड ये बन रहा है, मैं पब्लिक के सामने कह रहा हूँ, बल्कि ये मीडिया के सामने कह रहा हूँ, बहुत दूर तक बात जाएगी। आज जो करतारपुर वाला रोड जो बन रहा है, इससे पहले जितनी दफ़ा इस रोड को बनवाया है, पहले मेरे वालिद साहब ने ख्वाजा मोहम्मद सफदर साहब से ये बनवाया था, उसके बाद मियाँ शफी साहब MNA आए थे मुस्लिम लीग की तरफ से, फिर उन्होंने बनाया था, फिर उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब आए थे, उस वक्त थोड़ा सा वो बना था, रोड मुकम्मल नहीं हुआ था। जब जाहिद अहमद साहब आए उस वक्त हमने इस रोड को उधर से लेकर, बल्कि जाहिद अहमद से पहले वो नाज़म अकमल चीमा साहब आए, उनके दौर में भी बतौर मैं नाज़म ये रोड अपने लिए लिया था। ये रोड को चौड़ा भी करवाया और आगे भी बढ़ाया। जब उसके बाद जाहिद अहमद साहब आए, जाहिद अहमद साहब से मैंने इलाके के लिए पूरी डेवलपमेंट, ये रोड की डेवलपमेंट, उस वक्त मैंने MPA का इलेक्शन लड़ लिया था, तो बतौर MPA ही अपने हल्का में अपने आप को मतलब है कि वो मेरी जमात ट्रीट कर रही थी। मेरे हल्का में ऐसा कोई गाँव ऐसा खाली नहीं जहां हमने
सुई गैस ना पहुंचाई हो, बल्कि डेरों तक हमने पैर पछा दिया है। हमारे बाद किसी को ये नहीं होगा कि कोई गांव रह गया है या कोई डेरा रह गया है। और लिंक रोड और उस वक्त जो रोड बनाए थे अपनी जमात से लेकर, अल्लाह की मेहरबानी से हमारे हल्के जितनी किसी ने डेवलपमेंट नहीं करवाई। और जो सियालकोट के हवाले से आप कह रहे हैं, मेन रोड में से सिर्फ ये रोड रह गया बनने वाला जो बन रहा है इस वक्त, करतारपुर रोड, कालारावा से करतारपुर रोड। सियालकोट के जितने मेन रोड है इस वक्त अल्लाह की मेहरबानी से वो सारे मुकम्मल हो चुके हैं। सिर्फ इस वक्त रिंग रोड शुरू होने वाला है, वो भी चंद दिनों में शुरू हो जाएगा। और मेरा ये लिंक रोड सूरपुर रोड से लेकर पसरूर रोड तक ये लिंक रोड, अभी मुझे कल परसों ही मेरे हल्का के MNA से बात हुई थी अपना एक मीटिंग में, उन्होंने मुझे बताया कि 32 करोड़ रुपया हमने इसका जारी करवा दिया है और 1 माह में ये काम शुरू हो जाएगा। मेरा ख्याल है इस हल्का में तो कोई ऐसा काम नहीं रहेगा। छोटे मोटे ज़ाहिर है ये मुआशरा चलना है, ये मुल्क चलना है, ये इलाके के लोग घूमते फिरते हैं, छोटे मोटे तो काम इंशाल्लाह होंगे, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से ये बड़े काम, बड़े रोडों वाले 25 साल के लिए ख़त्म हो जाएंगे। ये जो रोड बन रहे हैं ना, इनकी लाइफ 25-25 साल इंशाल्लाह होगी। तो बहुत ईमानदारी से और बहुत पीछे इनके चढ़कर हमारी गवर्नमेंट बनवा रही है और इनकी अच्छी चेकिंग हो रही है। अच्छा चौधरी साहब, आपने अभी PMLN का नाम लिया, ख्वाजा आसिफ साहब का नाम लिया। मैंने देखा है, सुना भी है कि आपका ख्वाजा आसिफ साहब के साथ काफ़ी याराना है और नवाज शरीफ के साहब के साथ भी आपकी फ़ोटोज़ वगैरह देखी हैं। सुनने में ये आया कि आपको एक दफ़ा टिकट नहीं मिली PMLN की तरफ से, उसके बावजूद भी आपने वफादारी की, आपने जो है एहसास किया और फिर भी उनके सपोर्टर हैं। तो मुझे इसकी वजह बताएं कि क्या वजह थी कि आपने उनसे वफादारी कायम रखी, उनको सपोर्ट किया। क्या इसमें कोई अपना फ़ायदा सोचते थे या वैसे ही कोई वफादारी, कोई कह लें कि अपने ख़ानदान को साबित किया कि भाई हम वफादार हैं? क्या कहना चाहेंगे इसमें? ये आपका बड़ा ज़बरदस्त सवाल है और मेरा ख्याल है कि मेरी ज़िंदगी का ये बड़ा तलख और मेरे सियासी कैरियर का भी ये बहुत अहम सवाल है। मेरी इस वक्त ज़िंदगी तकरीबन कुछ 36 साल हो गया है पॉलिटिकल वर्कर लाइन में खड़े हुए। आज तक हमने अपनी जमात से बेवफाई नहीं की। बहुत सारे लालच हमें दिए कि बहुत दफ़ा में ये भी बोला गया कि आप इलेक्शन लड़ें, MPA का लड़ें। काफ के दौर में हमारे घर पर आकर आफरी, उसके बाद भी आफरी हुई, लेकिन हमने तरजीह दी उस वक़्त अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को, क्योंकि जब हम सियासतदानों की लाइन में किसी को खड़ा देखते हैं ना, तो फिर मियाँ नवाज शरीफ के बराबर का उस कद काठ का को मुझे सियासतदान जो मुल्की मुफाद की बात करता हूँ वो मुझे को नज़र नहीं आता। अगर उसके नीचे आ जाए, उसके बाद आ जाए, हालांकि मियाँ साहब ने ही मेरा टिकट दिया दूसरे मेरा टिकट मियाँ साहब ने दिया दूसरे लोगों को। ये मेरा गिला बनता उनके साथ और ये गिला ताहयात रहेगा, बल्कि गिला नहीं। हम सीटें जीतते थे उस वक्त, 4 सीटें उस वक्त तब्दील की गई हैं। अदरीस बाजवा की, चौधरी मोहम्मद रफ़ी की, लियाकत गुलमन था उस वक्त, उसकी सीट वो जीता हुआ MPA था, उसकी छीनी गई, या गुलनवाज सा डस्का से। ये 4 सीटों को तब्दील करके 4 बंदे जमात में शामिल किए गए थे। मैं आज ये कहूँगा कि मेरी क़यादत ने ये बहुत बड़ा हमारे साथ जुल्म किया उस वक्त, और जिस लिए उन्होंने जिताया था कि शायद वो डबल अक्सरियत ले जाएंगे या वो 2/3 ले जाएंगे, ये 2/3 भी उनको बचा ना सकी। वर्कर के साथ किसी को जुल्म नहीं करना चाहिए। 36 साल की हमारी सर्विस इस जमात को बनाने के लिए लग गई है। ये जमात को जब हम बना रहे थे तो उस वक्त जमात ख़त्म भी एक दफ़ा हो गई थी। जब काफ थी उस वक्त हमारे सारे पूरे पाकिस्तान में 17 MNA थे। मुझे खुद ये समझ नहीं आ रही कि हमें कैसा इश्क है और किस इश्क की वजह से कि ना ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को छोड़ सकते हैं और ना मियाँ नवाज शरीफ को। अच्छा, अब आप इतनी ज्यादतियाँ होने के बावजूद
کہ خواجہ صاحب ہمارے قائد ہیں سیالکوٹ سے, ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں, میرا فیملی, میرا خاندان, ہمیں فخر بھی ہے, ان پہ فخر بھی ہے. تو اسی طرح میاں نواز شریف ہمارے قائد ہیں, لیڈر ہیں. تو گلہ تو ہمارا رہے گا, بلکہ گلہ نہیں, کئی دفعہ میں سوچتا ہوں کہ اللہ کی مہربانی سے جب ہم اللہ کے حضور پیش ہوں گے نا تو ہمارا ہاتھ ہوگا اور ان لوگوں کا گریبان ہوگا. چھوڑیں گے نہیں, معاف نہیں کیا ہم نے آج تک, نہ معاف کریں گے. ہمارا سیاسی قتل کیا گیا ہے, اس قتل کو ہم نہیں بھولیں گے. جماعت کا ساتھ ضرور دے رہے ہیں, لیکن ہمارے پورے کیریئر کو قتل کیا انہوں نے, وہ قتل معاف نہیں کریں گے, اور نہ کریں گے, کرنا ہے. تو صاحب آج کل کا جو دور ہے نا, اس میں زیادہ تر سنا جاتا ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ الیکشنز کے بعد جو ہمارے سیاسی لیڈرز ہیں وہ اپنی عوام سے, اپنے لوگوں سے دور ہو جاتے ہیں. ووٹس وغیرہ لینے کے بعد, کاموں کے وقت وہ اپنی عوام سے دور ہو جاتے ہیں. تو کیا آپ نے بھی ایسا کیا؟ آپ کا سوال یہ بھی بڑا زبردست ہے کہ ووٹ لینے کے بعد سیاستدان یا لیڈر دور ہو جاتا ہے. دور نہیں ہوتا, اصل میں لوگ توقعات اتنی کر لیتے ہیں کہ ان کی توقعات پر جب انسان پورا نہ ہو تو پھر دیکھتے ہیں کہ شاید لیڈر دور ہو گیا. تو انشاءاللہ ہمارا تو ایسا کوئی نہیں, ہم تو ڈیرے پہ بیٹھتے ہیں, سارا سال بیٹھتے ہیں, 365 دن ہوتے ہیں, جتنے دن ادھر ہو, اور ہماری خواہش ہوتی ہے. بلکہ کئی باری ذہن میں یہ بھی سوچا ہوتا ہے ہم نے کہ سارے دن کو جب شام کو واپس آتے ہیں تو سوچتے ہیں یار آج کسی کا کام نہیں کیا, کسی کا کچھ کام نہیں ہوا. اگر ایک کام چھوٹا سا بھی کر دینا کہ سڑک ہی کسی کو پکڑ کر پار کرا دے تو ہم سمجھتے ہیں کہ آج اللہ کے حضور ہم سرخ ہوئے ہیں. ہمارا نظریہ تو یہ ہے, دور ہونے والی تو بات ہی نہیں ہے. اچھا چوئی صاحب, معاشرتی سوالوں کی طرف کچھ آتے ہیں. آج کل جو ہمارا معاشرہ ہے نا, اس کے اندر نفرت بڑی پیدا ہو گئی ہے, لوگ انٹالرنس بڑی پیدا ہو گئی ہے, لوگ آپس میں چڑ کھاتے ہیں, ایک گھر میں آپس میں بھائی لڑتے ہیں, بھائی بھائی کا دشمن ہے جگہ کے پیچھے, مطلب نفرت پیدا ہو گئی ہے. تو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ کیوں ایسا ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, یا کیا بہتری ہونی چاہیے؟ میرے یہ بھی سوال آپ کا بڑا اہم ہے, بلکہ بڑا زبردست سوال یہ ہے. میرے خیال میں یہ جو شام کو چند ٹی وی اینکروں نے جو تربیت کی ہے نا اس 10-12 سال میں, یہ جو آزادی اظہار رائے کی آڑ میں دیکھتے ہیں ہم نے ٹی وی چینل میں دیکھا کبھی, جو تو ٹی وی پہ جو آتے ہیں اس وقت کو ایم این اے ایم پی اے بلائے ہوتے ہیں, ان کے اختیار میں کیا ہوتا ہے سوائے باتیں کرنے کے, اور اتنے بڑے قد کاٹ کے لوگ ہوتے ہیں, ایک دوسرے کا گلا پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں, بدتمیزی کرتے ہیں. تو ان کی تربیت کو دیکھتے دیکھتے یہ معاشرہ اس طرف چلا گیا. تو جیسے لیڈر ہوں گے ویسے ہی معاشرے نے تربیت پکڑنی ہے نا. تو دیکھ لیں, وہ جب سے وہ ٹی وی چند اینکر ٹی وی والوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا تھا, آج وہ پوری قوم اس طرف چلی گئی ہے. بلکہ اس طرف جانے کی کیا بجائے اتنی بدتمیزی کی طرف چلے گئے ہیں لوگ کہ کسی کی عزت بھی محفوظ کسی کے ہاتھ سے نہیں رہی. تو یہ ہماری تصویر ان چند لوگوں کی میں تو سمجھوں گا شیطانی ہے. تو وہ اپنا کاروبار چمکانے کے لیے, اپنے وہ نمبر بنانے کے لیے, اپنے میڈیا چینل کو چلانے کے لیے روز 1-2 گڑبڑ کرواتے تھے. تو عزت دار آدمی تو میرا خیال ہے جو سیاستدان کو سمجھدار ہے وہ ایسے پروگرام میں جانا پسند بھی نہیں کرتا. تو صاحب میرا خیال ہماری بات کافی لمبی ہو گئی ہے. اینڈ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے فیوچر میں کیا پلانس ہیں, کیا کوئی آپ کے مطلب کیا سوچ ہے, آپ کیا بہتری کرنا چاہتے ہیں سیالکوٹ میں؟ اور اینڈ پہ مجھے اور ہمارے جتنے بھی نوجوان یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ آگے سے الیکشن میں ہی اگر آنا چاہتے ہوں, کیا پیغام دیں گے, یا ویسے کیا پیغام دیں گے؟ جو آپ کا سوال میرے سامنے آیا یہ بڑا اہم سوال ہے کہ آپ نے پوچھا ہے کہ جو نئی نسل ہے وہ کیا کرے. نئی نسل کے یہ میرا پیغام ہے کہ اپنے آپ کو بالکل اس وقت معاشرے کی تصویر کو سامنے رکھتے ہوئے, اس پریکٹس کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو زندگی ہے کوئی زندگی نہیں ہے. زندگی یہی ہے کہ ایک دوسرے کے کام آؤ اور ملک کی خدمت کرو, قوم کی خدمت کرو, انسانیت کے لیے کام کرو, انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کرو. اور جو شخص
इंसानियत की भलाई के लिए काम करेगा और वो ही बंदा इस आज़ादी की कदर करेगा। इस आज़ादी की कदर करना ही सबसे बेहतर है। जो आज़ादी की कदर करेगा वो ही समझो अपनी कौम और मुल्क की खिदमत करेगा। तो जिन लोगों ने ये आज़ादी हासिल की है उन लोगों से पूछें, या जिन लोगों के हमारा माशरा तो भूल ही गया कि ये मुल्क कैसे हासिल किया है, ये मुल्क कैसे मिला है। अब उनको ये बताने वाले लोग कम पड़ गए हैं। मीडिया ने ऐसा इन लोगों को दूसरी तरफ उछाल दिया है। तो लिहाजा मेरा तो सारे दोस्तों को यही पैगाम है कि ये आर्जी चीज़ें ना सोचें, मुस्तकिल चीज़ ज़हन में रख के यही सोचें कि हमने मुल्क और कौम की खिदमत के लिए हर वक्त हर कदम तैयार रहना है। अच्छा चौधरी साहब, एंड पे एक और सवाल बन गया, चूँकि आपने मीडिया का नाम लिया है, सोशल मीडिया का दौर है, आपका क्या ख्याल है? मीडिया ने सियासत को कितना बेहतर बनाया और कितना खराब किया? मीडिया ने, सवाल तो ये बड़ा आपका अहम है, बड़ा अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल में अवेयरनेस तो दी है, लेकिन ये अवेयरनेस बजाय कि पॉजिटिव जाती नेगेटिव हो गई है। अफवाहें बनी हैं। मैं यही कह रहा हूँ, अवेयरनेस तो दी है लेकिन ये पॉजिटिव होने के बजाय नेगेटिव हो गई है। लेकिन अब हमने ही कोशिश करनी है, जो मुआशरे ने ही कोशिश करनी है। ये रुकेगा तो नहीं, ये तो बढ़ेगा, बल्कि दूसरी टेक्नोलॉजी आ रही है, AI आ रही है, इसके अलावा कई टेक्नोलॉजी और आ रही है जिसमें से हर वक्त अफवाह साजी और सब कुछ हो रहा है। तो मेरे नज़दीक तो यही अच्छी बात है कि हमें सोच समझ के बात करनी चाहिए, जो हकीकत में है उसके पीछे जाना चाहिए और हकीकी बात करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सोशल मीडिया से कुछ चीज़ आ गई है तो उसको आगे बढ़ाते जाए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तहकीकत करके आगे बढ़ानी चाहिए, ऐसे नहीं बढ़ानी चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि मीडिया ने जो अवेयरनेस दी है इसमें नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। जो अच्छा करना चाहे उसको मिल सकता है इससे अच्छा, तो जो नेगेटिव करना चाहे उसकी सोच है वो बढ़ा सकता है, बहुत कुछ बढ़ा सकता है। तो साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। मुझे आपकी बातें सुन के ये एहसास हुआ है कि एक अच्छी सोच और एक अच्छी नीयत इंसान को कामयाबी की राह पर लेके जा सकती है। और मुझे ये भी उम्मीद है कि हमारी तमाम बातें एक पॉजिटिव वे में हर बंदा ही जो ये बातें सुनेगा वो समझेगा और इन बातों पर अमल भी करेगा। बाकी एंड पर नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये इंटरव्यू, हमारी ये बातचीत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह जल्द ही एक नए इंटरव्यू के साथ, एक नए शो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।